करना चाहते हैं और सारी शर्तें आपकी हमें कबूल हैं। अंसर रज़ा को आंदा है भाई कुरान से बात करनी है, मिर्जा कादियानी की बातें नहीं पेश करनी है, हदीस भी नहीं पेश करनी है। तुमने खत्मे को साबित करनी है, मैंने इजराइल को साबित करनी है। चलो ये मुनाजरा है। अच्छा वो जेडे नाल वाले मिर्जाई सन वो आखन अंसर भाई ठहर जो देख लो केड़ा बंदा है, वो आखे बहुत बड़ा आलमे दीन है मोहम्मद आसफ भाई आलमे दीन है ते उन्होंने अंसर दा पता को नहीं है। फिर उन्हें आखे भाई वेख लियो कोई एवं ही ना बंदा नहीं बहुत बड़ा आलम है, फिर फिक्र ना कर। वो जेडी शर्तां दे सी आंदा सी तुम्हारी सब शर्तें हमें कबूल है, कोई हमारी शर्त नहीं है। ए मुनाजरा तय होया है, मेरा ख्याल है वो आसफ सपना जिसके सामने जाएगा उन्होंने लग हो जाएगी। इन्हें जिस वेले दलील देनिया ने भाई कड्डो है मसरूरे को मेरे ने पैसे देने ने आख्या ना वो मेरे है मरदई पैसे लै गया, दुख पैसे हुंदा नहीं, दुख है मैं मरदई लै गया होर हुंदा खैर सी ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਪਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਆਹੋ ਨਿੱਕੇ ਜੋੜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁਸੱਦਕ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ? ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬੋ ਹਕਮਤ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧਚਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੈ ਬਖੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਝਾੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਰੱਬ ਨੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੀਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਆਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਸੇ ਕੁਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੁਸੱਦਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਾ ਮੁਸੱਦਿਕਮ ਬੇ ਰਸੂਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਚੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਤੇ तमाम ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਬੀ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਚੋਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਬੀ ਭੇਜੇ, ਜਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਕ ਨਬੀyin ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਸੱਦਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸੱਦਕ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ, ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਗਈ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਆਜ਼ ਲਾ ਦਾ ਮੈਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਗਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰ ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਤ ਯਾਦ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾ ਨਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਨਫੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। یعنی کہ اور جگہ تو استعمال ہو سکتا ہے نہیں، مطلب لا انکار ہی میں نا ایک انکار پہ کرتا ہے، انکار نہیں ہوتا، مطلب کیا کہے کامل انکار نہیں ہوتا، کامل لا کا مطلب ہے نفی کسی چیز کی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یعنی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی گنجائش ہے کہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لا نبی بعدی کا بھی مطلب ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کی بھی، نو گنجائش، ختم، مکمل قطعی نفی، شبہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں، اسی طرح لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں، کوئی بھی، نہ کوئی پرانا، نہ کوئی نیا، نہ کوئی دلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی استارہ، کوئی بھی نہیں، بس کہانی ختم، چیپٹر کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ گل یہ ہے کہ میں جس گل کا قائل ہاں، تسی جڑی گل کرتے ہو میں وہ متفق ہاں کہ لا الہ الا اللہ وچ بھی تے لا نبی آباد بھی دونوں وچ لا نفی جنس دا ہے، لیکن کئی جگہ تے لا نفی کمال دا بھی ہوندا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ دی نماز ہی نہیں جڑا سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اتنے لا نفی جنس نہیں ہے، لا نفی کمال۔ دیکھیں نا وہاں پہ بھی اگر آپ کہتے ہیں اس کی نماز بھی، اس کا مطلب ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی نہیں، یہ نماز قبول ہوئی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم اس پہ نہیں کر رہے کہ اس کی نماز میں ضرورت ہے فاتحہ پڑھی، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور لا نبی بعدی، ان میں دونوں لا کا مطلب 110% سیم ہے، دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں۔ ہاں آپ کسی اور میں لا کو وہ کر کے جیسے آپ کا مثال دے رہے ہیں وہ بات الگ ہوگی، لیکن ہم بات کیا کر رہے ہیں، لا نبی بعدی لا الہ الا اللہ، دونوں سیم۔ لیکن اس کا انکار تو ہمارے علماء نہیں کرتے کہ کئی دفعہ لا نفی کمال کا بھی آتا ہے، کئی دفعہ لا نفی جنس کی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر جنس کی نفی کر رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مرزائی کہتے ہیں کہ یہاں پر لا نفی کمال کا ہے، لا نبی بعدی، میرے کمال جیسا نبی کوئی نہیں، میرے جیسا نبی کوئی نہیں۔ اس طرح کا پنچر لگاتے ہیں۔
लेकिन ये तो फिर जिसने अगर मुसलमान भी तो लगाते हैं, अगर उनके बकौल उनके वो आप बता रहे हैं ऐसा पंचर लगाते हैं, तो मुसलमान भी तो पंचर लगा ही रहे ना। नहीं वो हजरत ईसा आएंगे लेकिन वो ये होंगे, वो ये होंगे, वो नहीं होंगे, उम्मती होंगे, नबी होंगे लेकिन उस वक्त नबी नहीं होंगे, उनका नबी तो होंगे लेकिन आखिरी नबी नहीं होंगे। पंचर ही है ना ये सारे, ये भी तो पंचर ही कहलाते हैं। पंचर इसलिए नहीं है कि ये मुसलमानों का कोई क्यास गुमान इज्तिहाद नहीं है, बल्कि नबी की वही है, नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं कि मुझे कसम है उस ज़ात जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम मेरी ईसा इब्न मरियम नाज़िल हो। वही है, हाँ वही है। यही उन्होंने कहा कह कि वही है मेरी। नबी करीम ने खुद कहा कि अल्लाह ने वही की है, ये बात जो आपने की है नबी करीम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे वही। हदीस आप कहते हैं लेकिन वो मैं ये कहता हूँ आपके बड़ा कहते हैं कि नबी करीम ने कहा कि कसम है मुझे उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान। मैं भी ये कहता हूँ कि जो बात कुरान में अल्लाह ताला ने कही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उसके ऊपर अल्लाह की कसम खा सकते हैं? ये किस तरह मुमकिन है? आप उस हदीस को क्यों नहीं ज़ईफ़ करते? अगर अहमदियों का ये कीदा होता ना, हम आपके सामने ये हदीस रखते, आपने कहना था ये तो हदीस ही ज़ईफ़ है, इसका तो पता ही नहीं चल रहा, इसका तो रावी का नहीं पता, इसको तो कुरान ने मुस्तरद किया, इसको कुरान ने नहीं किया। चूंकि इसके आपके कीदे के मुताबिक ऐन है तो आप इसको वही भी कह रहे हैं, आप इसको हदीस भी कह रहे हैं और आप इसको ये भी कह रहे हैं कि नबी ने कसम नहीं बता दी। मैं किस तरह मान लूं? मुझे बताया ना, मेरे नबी की शान है कि वो उस बात पे कसम खा रहा है जिसके कुरान में जिक्र ही नहीं है बिल्कुल। अगर आप अदल से काम लेंगे और जितनी लंबी बात आप कर रहे हैं मुझे भी उतना मौका देंगे ना, मैं भी कोई अपना माफी ज़मीर बयान कर लूंगा, नहीं तो आप अकेले बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा। बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ये अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये नबी की हदीस हो नहीं सकती, नबी पाक कसम खा नहीं सकते और कह नहीं सकते मुझे पुंजोड़ कि मुझे कसम आज़ाद जिसको कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले तुम में ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, ये नबी पाक कह नहीं सकते। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा साहब कज़ाब और दजाल है। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा साहब का दावा है कि नबी पाक ने फरमाया है कि ईसा इब्न मरियम क़यामत से पहले तुम्हें नाज़िल होंगे और मैं हूँ वो। मुराद ये, अगर मिर्ज़ा साहब इसका सिरे से इनकार करते जिस तरह आप कर रहे हैं कि नबी पाक ऐसी बात क्यों कर सकते हैं जिसका कुरान में जिक्र ही नहीं है? ईसा इब्न मरियम के नज़ूल का कौल आपके कुरान में जिक्र ही नहीं है, इसलिए नबी पाक ये बात तो कर ही नहीं सकते। ठीक, मान लेता हूँ मैं आपकी बात। ये हदीसें जो बुखारी मुस्लिम की हैं, नैलुल उतार की नहीं है, बहकी की नहीं है, बल्कि बुखारी मुस्लिम की है, जिसके बारे में मुसलमान कहते हैं और मिर्ज़ा साहब ने भी ये कहा है, असहुल किताब बाद किताब अल्लाह की किताब का सही तरीन किताब है। तो अगर इसको छोड़ना है तो छोड़ दें, फिर मिर्ज़ा साहब को फारग करें और कहें ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया, मिर्ज़ा साहब झूठे घर अपने। वो जो है नहीं चकड़ालवी जो सिर्फ अहले कुरान है, वो कहते हैं कुरान में ईसा इब्न मरियम के फौत होने का जिक्र है, उनके आने का जिक्र ही कोई नहीं, हदीसें हम मानते ही नहीं, तो इनकार करो। आप तो अपने ही मौक़िफ़ के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये है असल मसला। आप बोले साहब ने तो ये कहीं नहीं कहा कि हज़रत ईसा उनका कीदा था, जब उन्होंने तब्दील कर लिया उसके बाद उन्होंने कहीं ये लिखा है कि वो भी जिंदा, उन्होंने तो वो मुजद्दद की हदीस उन्होंने आपसे ठीक है इस्तिक़ाम पे मतलब आएगा, उन्होंने वो क्लेम किया। उन्होंने ये थोड़ा कह दिया कि उन्होंने कहा कि जिसको लोग मसीह, क्यों उन्होंने कहा जिसको लोग समझते हैं कि वो ईसा है वो नहीं है, वो ये मुजद्दद की तरफ इशारा है, इनकी तरफ इशारा किया गया कि उससे ऐसे आएंगे। वो तो वो क्लेम करते हैं, ये थोड़ा कहते हैं कि हज़रत ईसा बहुत हो गया लेकिन हज़रत ईसा जिंदा है और वो आएंगे, बहुत भी हो गए हैं, जिंदा भी है और आएंगे भी, हदीस भी दुरुस्त है। ये तो उन्होंने कही। आप अपना माखज़ निकाल लेते हैं किसी भी उससे तहरीर से, वो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने तो देख लें, आप में देखने के बाद
मिर्जा साहब की बात अगर आप करते नहीं हैं तो मैंने आज नजदीक आपको बता दिया हुआ है कि हजरत साहब की हर बात को मानना मेरे लिए मुझे नहीं, अगर मुझे लगता है कि ये बात उनकी कुरान से टकराती है। अगर हजरत साहब का अकीदा होता हजरत ईसा ने आना है, वो जिंदा है, वो आएंगे और ये कुरान से टकराती है, मैं उनका ये अकीदा रद्द कर देता कि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है इस बारे में, या उनका दुरुस्त है मेरा नहीं है, लेकिन मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूँ। व्हाटएवर, ठीक हो गया। अब मुझे आपने सिर्फ सिंपल छोटी छोटी बात बतानी है, लंबी बात नहीं करनी। मिर्जा साहब का मसीह मौद होने का दावा आप मानते हैं या इनकार करते हैं? मैं मानता हूँ, मानते हैं। वो मौत जिसका वादा मसीह है, वो वादा कहाँ पे है? जिस मसीह का वादा है वो कहाँ पर लिखा हुआ है? ये कोई मुजद्दिद की हदीस जो आप कहते हो यार, तो वादा का क्या मतलब? कोई मिर्जा साहब का नाम थोड़ा नहीं कि कहीं अल्लाह ताला ने वादा किया कि एक शख्स आएगा, उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी होगा, वो कादियान से होगा, वो मौजूद होगा, उसको मैं ना जो उसकी उन्होंने जो बयान किए वो उन्होंने किया वादा। आप मुझे नहीं समझ सकते कि वादा आप किस किस्म का वादा करते हैं और कहाँ। मौद होता ही वो है, मौद होता ही वो है जिसका वादा होता है। मौद ऐसी शख्सियत को है, जिस तरह आप मुस्लिम मौत कहते हैं, आप नहीं कहते, दूसरे कहते हैं। मौद होता ही वो है जिसका वादा किया गया होता है। तो ये मानना है कि कोई मौद नहीं है। नबी पाक ने अपनी उम्मत के साथ किसी मसीह का कोई आने का वादा नहीं किया। ये कह रहे हैं ना आप? मैंने कहा बात करें, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, बात तो खत्म हो गई है। अगर आप ये कहते हैं कि नबी पाक ने इस उम्मत के साथ किसी मसीह के आने का कोई वादा नहीं किया, तो मिर्जा साहब का मसीह मौद होने का वादा कहाँ गया? बढ़ गया ना, बात तो खत्म हो गई है। मैंने ये तो नहीं कहा कि नबी करीम ने कोई वादा नहीं किया किसी मौत के आने का। आपने कहा है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नबी पाक ने कसम पे मुजद्दद आएगा, वो उसी को डिफाइन करते हैं कि ये मसीह मौद है, ये मुजद्दद है, ये है जो कुछ आप डिफाइन करते हैं। अब आप कहते हैं हफीज शेख साहब, आपकी बात सुनकर हैरत भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि आपकी उम्र 50 के करीब है, आपको मिर्जा साहब के मौक़िफ़ का ही नहीं पता। मिर्जा साहब नहीं पता। मिर्जा साहब का ये मौक़िफ़ नहीं है कि मैं मुजद्दिद हूँ और मुजद्दिद मसीह मौद है ना। मिर्जा साहब का मौक़िफ़ ये है कि मैं वो मसीह मौद हूँ जिस मसीह का नबी पाक ने अपनी उम्मत से वादा किया हुआ है। कसमें खा कर कहा हुआ है कि कुर्बे क़यामत में ईसा इब्ने मरियम तुम में नाज़िल होंगे, मैं वो जो नबी पाक ने फरमाया 2 ज़र्द चादरें लेकर आएगा, नाज़िल होगा, उससे 2 ज़र्द चादरों से ये मुराद है, मीनारतुल मसीह से ये मुराद है। आपको नहीं पता? मिर्जा साहब ने जो मसीह मौद होने का दावा किया ना, वो मौद तो है ही वो जिसका वादा हदीसों में है। यही तो बात है ना कि हुसैनी साहब हंसते हैं, कहते हैं कि इनको मिर्जाइयों को जब ये कहते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, आप उनके साथ मुत्तफिक हो जाए और कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया, मसला हल हो गया है, फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करना शुरू कर देते हैं। कहते नहीं, उनके आने का भी तो वादा है ना। तो हुसैनी साहब कहते हैं जो बंदा फौत हो गया उसके आने का वादा कहाँ से आ गया? अगर वो फौत हो गए हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि वो फौत हो गए, तो फौत शुदा बंदे के आने का कोई वादा हो सकता है? यही तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, यही तो सबसे बड़ी पेचीदगी है जो कादियानियत दुनिया में फैली नहीं ना, इस पेचीदगी की वजह से फैली। मिर्जा साहब ने ये बात समाज की कि जैसे ईसा ने आना है, दर हकीकत 100% वो ही मैं हूँ, मसीह नहीं हूँ। मसीह का क्या मतलब होता है? मसीह का मुझे आप हाँ मैं बता हकीकत होता है, हकीकत में वो ईसा होता है, उसका नाम मरियम होता है, वो अल्लाह का नबी भी होता है, उस पे किताब भी उतरी होती है। हफीज शेख साहब मैं करता हूँ ना वज़ाहत, अगर मौका देंगे तो। मिर्जा साहब ने बताया है
کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیح کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، مسیح آئیں گے قیامت سے پہلے، لیکن نبی پاک نے جو یہ فرمایا کہ مسیح آئیں گے، وہ اصل میں ایک بندے کو مسیح کا نام دیا گیا، وہ اصل میں مسیح ابن مریم نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نام تو غلام احمد قادیانی ہے، لیکن اس کو مسیح کا نام دیا نبی پاک نے۔ یہ ہے مرزا صاحب کا پورا جو ان کی تھیوری ہے۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں، آپ کو مرزا صاحب کی تھیوری سے ناواقفیت ہے کہ مرزا صاحب وفات ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے ناواقفیت نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کہا۔ آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ لیتے ہیں، ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ لیتے ہیں، اور ہم ان کے فالوور ہیں، آپ ان کے فالوور نہیں ہیں۔ آپ نے تو ان کے خلاف ہی لینی ہے اور ہم نے ان کے حق میں ہی لینی ہے جو انہوں نے وضاحت خود کی ہے اس کی۔ اگر تو انہوں نے کہیں لکھ دیا ہے کہ میری ماں میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں، شیخ صاحب میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا، وہ یہ کہی ہے کہ قرآن سے وفات مسیح ثابت ہے، حدیثوں سے نزول مسیح ثابت ہے۔ نزول مسیح کا انکار نہیں کیا مرزا صاحب، یہی تو سب سے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیڑا گرک ہو گیا نا قادیانی کا۔ پوری تھیوری یہ ہے کہ قرآن سے وفات مسیح ثابت ہے، حدیثوں سے نزول مسیح ثابت ہے، پھر بظاہر یہ کنٹراڈکشن ہے، لیکن یہ کنٹراڈکشن کیسے دور ہو سکتی ہے؟ صرف ایسے دور ہو سکتی ہے کہ وہ مسیح جس کا نزول کا وعدہ ہے نا، وہ مسیح ابن مریم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہو گئے۔ تو پھر کون ہے؟ ایک بندہ ہے جو ان کی مثل ہے، اور وہ میں، یہ ہے مرزا صاحب کا دعویٰ۔ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ نبی پاک یہ قسم کھا کر کہہ ہی نہیں سکتے قرآن کے خلاف بات، تو میں نے تو اسی وقت کہا کہ آپ نے اپنے پاؤں میں کلاڑی مار لی ہے۔ اگر نبی پاک نے یہ بات نہیں کہی، آپ کے بقول یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں، تو مرزا صاحب تو فارغ ہیں۔ پھر مرزا صاحب کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا، وہ تو گیا پانی آتی ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ غور کریں کہ مرزا صاحب نے یہ چیز مانی ہوئی ہے جو عام بندہ قبول کر ہی نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے فوت ہو گئے ہیں، لیکن کئی بار قسمیں کھا کر کہتے رہے تمہیں عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں بیاہ کے وقت، حالانکہ یہ دونوں باتیں بیاہ کے وقت اس تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین انسانوں کے لیے رحمت ہے، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے اپنی کے ساتھ یہ کوئی مطلب یہ کیا کہ جو فوت شدہ بندہ ہے اس بارے میں قسمیں کھا کر کہا کہ اس نے آنا ہے، تو امت تو مطلب کے پیچھے معاذ اللہ باقی نا، جو فوت ہو گیا اس کے بارے میں نبی میں کہا کس طرح سکتے ہیں؟ یہ بات میں بھی نہیں مانتا ہوں۔ آپ دو ہی باتیں ہیں، اب آپ جو بات کرنے دیں گے اس کے ساتھ، اور اس نے آنا ہے، نزول ہونا ہے ان کا۔ یار میوٹ کریں گے تو نہ تیرا نجم میں اتار دوں گا۔ یا وہ فوت نہیں ہوئے اور ان کے نزول کا وعدہ ہے، یا نبی علیہ السلام نے یہ والی بات کہی نہیں۔ دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی۔ یا تو نبی پاک نے ان کے بارے میں یہ بات کہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں جتنی حدیثیں آتی ہیں یہ سب کی سب اٹھا کے ان کو دریا برد کر دو، کہہ دو یہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہے، وہ تو قرآن سے فوت شدہ ثابت ہوتے ہیں، اور مرزا صاحب کو گھر بھیج دو۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ یہ مان لیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی۔ جب قسمیں کھا کر کہا ہے عیسیٰ ابن مریم تم میں قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، تو پھر عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوئے۔ کتنی سمپل بات ہے، دین اسلام کتنا آسان ہے۔ مرزا صاحب نے جو بنا کے دیا نا مجون مرکب، وہ یہ بنا کے دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن 30 آیتیں بتاتی علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ادھر کو 30 حدیثیں ہیں جو نزول مسیح کی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لو بھائی
ये तो तमस्कर उड़ाया दीन का, ये तो दीन का तमाशा बनाने की कोशिश की है ये कहकर के वो ठीक है, वो 30 आयतें वफात मसीह का ऐलान कर रही हैं, ये 30 हदीसें नज़ूल मसीह का ऐलान कर रही हैं। इस वजह से अब हम इसके दरमियान तत्वीक पैदा करते हैं, कैसे करके कि कोई मसीह लाना है, असल मसीह इब्ने मरियम ने नहीं आना। नबी पाक ने जब फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम आएगा, उससे मुराद ये है कि उसका कोई मसीह आएगा। जो ये फरमाया 2 जर्द चादरें पहन के, उससे मुराद ये कि उसको कोई बीमारियां होंगी। जो ये फरमाया कि वो दमिश्क के मशरकी किनारे पर नाजिल होगा, उसका मतलब ये है कि दमिश्क क्योंकि यजीद की तख्तगाह है, तो कादियान में यजीदी सिर्फ लोग हैं, तो कादियान मुराद है, दमिश्क से मुराद। नबी पाक ने दमिश्क इसलिए फरमाया, इशारा था ऐसे गांव की तरफ जिसमें यजीदी सिर्फ लोग हैं, वो कादियान है। 192 bus stop. सुभान अल्लाह, भाई कौन मानेगा ऐसी सारी कहानी शरीफ लोग, इसलिए लोगों ने नहीं इसको Okay, don't worry. इस नजरिए को, इसलिए जिस तरह कहते हैं ये फिल्म फ्लॉप हो गई है, ये नजरिया इसलिए फ्लॉप हुआ है कि ये चल ही नहीं सकती बेअक्बर दोनों बातें। कि अगर मैं मान लूँ हदीस ठीक है कि ये वो हदीस है सही है, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों नहीं बता दी कि जब ईसा तुम में नाज़िल होंगे तो वो बतौर नबी नहीं होंगे, मेरे उम्मती के होंगे। और दूसरी बात का मुझे ये जवाब दें जो मेरे आप इल्म करते हैं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ सिर्फ अपने इल्म के लिए। कुरान में आता है, और क्या कहते हैं आप लोग, कहते हैं कि जी वो गवाह होंगे उस उम्मत पे जिसमें वो आएंगे। उम्मत कौन सी होगी, मुसलमानों की या ईसाइयों की या यहूदियों की? क्योंकि नबी करीम की उम्मत में आएंगे, नबी करीम की उम्मत में उन्होंने आना है, तो वो गवाह होंगे क़यामत वाले दिन उन पर। जबकि अल कुरान कहता है कि हर उम्मत पर एक गवाह होगा। इसका मतलब है कि जब तक नबी करीम अपनी उम्मत में रहे उस वक्त तक तो वो उसकी गवाही देंगे कि मैं अपनी वफात से पहले इस वक्त तक इस उम्मत का गवाह हूँ। इसके बाद ईसा गवाह है, अगली गवाही वो देगा इस उम्मत की। क्या वहाँ ऐसा होगा? और हजरत ईसा की उम्मत में कौन गवाह होगा? अगर हजरत ईसा मुसलमानों की उम्मत में ही गवाह होंगे, नबी करीम भी मुसलमानों की उम्मत पे गवाह होंगे अपने अपने वक्त के मुताबिक जो उन्होंने गुजारा अपनी उम्मतों में। हजरत ईसा की उम्मत में कौन गवाह होगा? और कुरान की ये बात कि हर उम्मत पर एक गवाह होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा उस एक से मुराद ये नहीं, उस एक से मुराद ये है, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग हर जगह गलत होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग हर जगह दुरुस्त होगी। मुझे बताएं, हर उम्मत पर एक गवाह, नबी करीम की उम्मत में 2 गवाह, ये होगा? शेख साहब ये होता है जिस बात से बंदा लाजवाब हो जाए उसको छोड़ छाड़ के दूसरी बात में भाग के चला जाए। ये गवाह वाला मसला जो आप छेड़ना चाहते हैं, एक मिनट, गवाह वाला मैं दूसरी बात पे भागा नहीं हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि नबी करीम को चाहिए था हदीस में वजाहत करते कि हजरत ईसा जो आएंगे वो इस हैसियत से आएंगे। उनकी हैसियत क्या होगी? वो नबी नहीं होंगे, उनकी नबूवत सिर्फ आसमान तक रह गई होगी, वो वहाँ पे छोड़ के आएंगे अपनी नबूवत को, और एक उम्मती की हैसियत से वो भी मेरे उम्मती कर देंगे, नबूवत का होगा खत्म। फिर तो बात क्लियर है। ये कहिए जब आप अगली बार नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा अल्लाह दुनिया बनाएगा, फिर नबी पाक को दोबारा इस दुनिया में भेजेगा ना, फिर आप नबी पाक को ये समझाना ना कि या अल्लाह आपने ये क्यों नहीं वजाहत की? अल्लाह नबी पाक को समझाने वाला मैं कौन हूँ? समझाने लगे ऐसी तो बात है, मैं नबी को समझाऊँ। आप क्या कह रहे हैं कि नबी पाक को ये कहना चाहिए था कि ईसा इब्ने मरियम जब आएंगे तो उनकी ये हैसियत होगी, इसलिए भी बता के जाना चाहिए था। बतानी चाहिए, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ ताकि अब उनको पता होना चाहिए कि मेरी उम्मत में इसके बारे में कंफ्यूजन हो सकती है। वो तो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह उनको बता सकता है कि आपके पास जो लोग होंगे, कहा मेरे पास हमारे ऐसे लोग होंगे वो इस तरह के हो जाएंगे, उस तरह के हो जाएंगे, वो भी तो अल्लाह ने बताया था ना। हो जाएंगे, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, किसने बताया? अल्लाह ने। शेख साहब, इस उम्मत में 14 सदियों से कुरान करीम भी मौजूद था और ये हदीसें भी मौजूद थी नुज़ूल मसीह की। कभी कोई बंदा कंफ्यूज हुआ ही नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल उन लोगों को इसीलिए कहा जो नबी पाक के बाद नबूवत का दावा करेंगे। तज़ाब होता है बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला, दज्जाल होता है धोखा देने वाला। दज्जाल असल में धोखे को कहता है। मैं आज हैरान हो रहा था, सुबह मैंने जैसे टिकटॉक ऑन की तो डॉक्टर इसरार की एक वीडियो किसी ने शेयर की थी, वो सामने आ गई।
مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا تھا کہ میں بھی شروع میں اس دھوکے میں آ گیا تھا. مرزا غلام احمد کے بارے میں بھی ایک دفعہ دھوکے میں مبتلا ہوا تھا. یہ ایسا دجل ہے, ایسا جالا بنا ہوا ہے, اچھے لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے یہاں پر, بھلے لوگوں کو, سیانے لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے. تو یہ ایسا ایک دجل ہے, ایک ایسا بھائی صاحب جال ہے بنا ہوا. آپ لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے. امت یہ کنفیوز کبھی بھی نہیں. اس بندے کی پیدائش سے پہلے یا تو یہ بحث نکال کے دکھائیں کہ کبھی ائمہ نے تفاسیر لکھی, احادیث لکھی, کسی محدث نے, کسی مفسر نے کبھی اس کنفیوژن کا اظہار کیا ہو کہ یار میں تو کنفیوز ہو رہا ہوں, قرآن سے تو وفات مسیح ثابت ہو رہا ہے, حدیثیں قسمیں کھا کر نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے, میں تو کنفیوز ہو رہا ہوں. بھائی 1000 سال سے یہ وہاں پر حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں نا. ائمہ نے اس کی شروعات لکھی ہیں, فتح الباری جس طرح لکھی ہے حافظ ابن حجر نے, صحیح بخاری کی, امام نووی نے لکھی ہے مسلم کی, اسی طرح سے بڑی اس کی شرح لکھی گئی ہیں حدیثوں کی. کسی امام نے, کسی شارع نے, کسی مجدد نے, کسی مفسر نے یہ کبھی کنفیوژن کا اظہار نہیں کیا کہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. کنفیوز کیا ہے کہ دھوکہ دینے والے بندے نے آپ کو ان باتوں سے کہ یہ 30 آیتیں قرآن کی بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا ذکر نہیں ہے, ورنہ نبی علیہ السلام یہ قسمیں کھا کر یہ کبھی نہ کہتے اپنے صحابہ کو کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم تم میں قیامت سے پہلے نازل ہوں گے عادل حکمران بن کر, وہ صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب یہ بھی شناخت بتا رہی ہے, یہ بھی نشانی بتا رہی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا تب تک یہ کرسچنوں نے اور صلیب نے رہنا ہے. ہم صلیبی جنگیں لڑیں, ہم ان کو دنیا سے نابود کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات وحی سے کی گئی ہے, انہوں نے رہنا ہے تب تک جب تک عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا. انہوں نے صلیب توڑنا ہے, انہوں نے خنزیر کو قتل کرنا ہے, انہوں نے اس دجال کو قتل کرنا ہے جس دجال کا نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اس امت میں دجال خروج کرے گا قیامت سے پہلے, وہ بھی نکلے گا اور وہ تیس پھیر دے گا ہر طرف, لیکن عیسیٰ ابن مریم کا ہاتھوں قتل ہوگا. بھائی یہ ساری باتیں حق ہیں, یہ سارا دھوکے اور دجل کا جال ہے. بیاہ کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں باتیں درست ہیں. آپ نے جو جہاں سے آپ کو غلطی لگی آپ نے کہا کہ نہیں یہ دونوں باتیں کس طرح, مطلب قرآن کو تو آپ مانتے ہیں اور قرآن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے, تو آپ دوسری طرف کنفیوز ہوئے کہ نہیں یار پھر حدیثیں یہ کیسے نبی پاک کی کیسے ہو سکتی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں وفات مسیح ہے تو حدیث کیسے ہو سکتی ہے نبی پاک کی. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر وفات مسیح کا ذکر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات کا لفظ گول, توفی کا لفظ گول مول استعمال کیا, جس کا معنی نیند بھی ہے, پورا لے لینا بھی ہے, وفات سے نکلا ہے یہ لفظ. حالانکہ نبی پاک کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا, انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. نبی پاک کے لیے تو مات کا لفظ استعمال ہو, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ موت مراد ہے ہی نہیں. ڈرامہ کیا گیا, ہیرا پھیری کی گئی اس لفظ سے, فراڈ کیا گیا, دھوکہ کیا گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے لہٰذا پھر اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اس کا مسیل ہی مراد ہوگا. یہ کر کے تو بڑا گیا. تو ان کو چھوڑ دیں, مرزا صاحب کا سارا دعویٰ باطل ہے, یا پھر ان دونوں باتوں کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. بیا کے وقت کہیں قرآن میں وفات مسیح ثابت ہے, حدیثوں میں نزول مسیح ثابت ہے, اور لیاؤ تو جڑی ہوندی نہیں, جڑی حاجم اللہ جو میں ہضم کرائے نہ دواں چیزاں بیا کے وقت حاجم اللہ کھائیں. یہ باتیں کر کے نا کہ قرآن سے وفات مسیح ثابت ہے, حدیث سے نزول مسیح ثابت ہے, تے حاجم اللہ کی ڈبی اور میرے نیڑے کرو. کون بندہ یہ بات مان سکتا ہے؟ ہوش والا بندہ تو مان ہی نہیں سکتا. یاد نہیں, شاید آپ کو میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں, شاید آپ کو یاد آ جائے. کہیں قرآن میں یہ ذکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو, یہ ایگزیکٹ اس کا شاید ترجمہ نہیں ہے لیکن ہے اس کا مفہوم یہی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں وفات دے دی جائے گی اور جو تم سے پہلے آئے تو وہ زندہ رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت اگر کہیں گے میں بعد میں آپ کو اس کا حوالہ دے دوں گا, لیکن ممکن ہے آپ کو
ज़्यादा इल्म है मेरे से कुरान का, आपको शायद इसका कुछ इसी किस्म का मफ़हूम है शायद का कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हें वफ़ात दे दी जाएगी और जो तुमसे पहले आए हैं वो जिंदा रहेंगे? तो इसका मतलब है फिर हज़रत ईसा जिंदा है, कुरान माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये बात गलत है कुरान की। आमिर भाई आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। आमिर भाई आपका माइक म्यूट है। सिर्फ 1 मिनट दे दे मुझे, मैं आ रहा हूँ। जी हफीज शेख साहब, आपको जवाब आमिर भाई देंगे, लेकिन बात यह है कि अपने वक्त पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी। जब वो वापस आएंगे तो ज़ाहिर है वो शादी करेंगे। नहीं मुर्तज़ा साहब देखें तो कुरान की आयत क्या कह रही है, ये देखें। ये नहीं कह रही कि तुम वहाँ लोग कोई तुम्हारे उम्र से पहले आने वाला, कह रहे हैं क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें मौत दे दी जाएगी और तुमसे पहले जो आगे वो जिंदा रहेंगे? जिंदा है ना, कुरान तो खुद सवाल कर रहा है, क्या तुम ये समझते हो? ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। तुमसे पहले जो आए हैं वो यानी तुम्हारे से पहले ही जाएंगे, फोत होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नबी करीम से पहले जो कोई नबी था वो जिंदा, नबी करीम की वफात होगी। क्या तुमसे पहले जो आएंगे वो जिंदा रहेंगे और तुम्हें वफात दे दी जाएगी? यहाँ वफात तो नहीं लिखी हुई। हफीज साहब ये कहाँ लिखा हुआ है कि तुमसे पहले ही दी जाएगी? ये कहाँ शर्त है? नहीं मुर्तज़ा साहब ये देखें, अब आप क्या बात कर रहे हैं। मैं अगर ये बात किसी को कहूँ मिसाल के ये आप कैसे बात कर रहे हैं? कुरान कह रहा है कि जिंदा रहेंगे, इस तरह बात नहीं है। वो कुरान के निकाल लेते हैं, इस तरह से वहाँ पर नहीं लिखा हो जिस तरह आप समझ रहे हैं ना। मैंने आपको कहा कि मैं उसका मफहूम वो यही बनता है। हाँ, नहीं वो ये नहीं बनता। ईसा अलैहिस्सलाम की पहली बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो रफ़ा आसमानी है या जो उनकी बरज़खी जिंदगी है जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसकी अगर कोई बंदा बड़ी जोर से मिसाल तलाश करना चाहे, कहे कि मैं हर चीज को अक्ल पर परखे बगैर नहीं मानूंगा, मेरी अक्ल नहीं मानती, तो असहाबे कहफ की मिसाल ली जा सकती है। असहाबे कहफ कई सौ साल तक वहां पर पड़े रहे, सोए रहे, लेकिन उनकी उस जिंदगी से नहीं बनना। दुनियावी जिंदगी से तो बंदा 8 पैर के बाद मर जाता है, रोटी ना खाएगा तो दो दिन कट जाएगा, तीसरे दिन मरना शुरू हो जाएगा। कई सौ साल तक वो कौन सी जिंदगी थी? ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप इस जिंदगी से ताबीर ना करें कि नबी पाक बहुत हो जाए तो वो जिंदा रहे। वो इस जिंदगी से जिंदा नहीं है, हम उनकी जिंदगी के बारे में इदराक नहीं रखते। अल्लाह जान मौजूदा जो होता है उसके बारे में होता यह है कि आप उसको अपनी अकल पर नहीं परख सकते। अल्लाह उनकी जिंदगी के बारे में सही जानता है। हम इतना जानते हैं जो कुरान में लिखा हुआ है, वमा कतलूहु यकीनन बल रफ़अहु इलैहि, हम इतना जानते हैं कि वो हरगिज़ कत्ल नहीं कर पाए उनको, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। बस इससे ज्यादा जितनी बातें हैं वो मेरे और आपके ज़हन की इख्तिरा होगी कि उठा के कहाँ ले गया, आसमान पे ले गया कि जमीन में किसी महफूज जगह पे रख दिया, असहाबे कहफ की तरह किसी गार में लटा के सुला दिया। ये सब फजूल हमारी फजूल गोइयां है। अल्लाह जानता है, हम इतना जानते हैं जो कुरान में लिखा। अगर कुरान पर ईमान तो इतनी बात, उनको अल्लाह ने उठा लिया वहां से, बस इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बयान करेंगे तो अपने पास से वो याबा गोइयां, इसलिए वो आयत जो आप कह रहे हैं ना उसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। वो आयत आपको कोई याद आई है कौन सी? अगर आप मुझे भी बता दें, मैं उसको देखना चाहता हूँ दोबारा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ अभी, लेकिन मैं खजूरें खा रहा हूँ। जरा 2 मिनट। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਕੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਅਸਲ ਮੁਰੱਬਾ ਦਾ। ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਰਦੀ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਨਾ। अच्छा आमिर भाई जी अभिषेक साहब गल कर रहे हैं, मैंने थोड़ी सी समझ नहीं आई कि मतलब यह कह रहे हैं कि जी आयत के मुताबिक जेडे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मतलब पैदा हुए उन्होंने पहले दूध होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आई।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले फौत हुए ने, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने फौत होना है तो क्या वो जिंदा रहेंगे? मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ शेख साहब समझा चाह रहे साहब चले इसको अबू बकर मीर साहब थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे ही ले लें सिर्फ समझने के लिए। आज इस वक्त दुनिया में कोई शख्स मौजूद है जो नबी करीम के वक्त से अभी तक जिंदा है? आम आदमी की बात करें, कोई है दुनिया में ऐसा? दुनियावी जिंदगी से कोई ना मैं मिसाल देने के लिए ये बात कर रहा हूँ, नहीं है ना? तो जब ये बात क्लियर कर दी गई है अगर कि तुम्हें वो मौत दे दी जाएगी और तुमसे पहले जो है वो जिंदा रहेंगे, तुम ये नहीं कहा गया कि तुमसे पहले जितने इंसान नहीं, इसके दो मायने अब निकल रहे हैं, मैं इसीलिए तो ये वजाहत चाह रहा हूँ। एक तो मायने ये निकल रहा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हुए हैं वो उनसे पहले फौत होना जरूरी है, ये लाजमी है। और दूसरा ये निकल रहा नतीजा इससे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हुए हैं या उस दौर में पैदा हुए हैं उन्होंने भी मरना है, वो भी मरा है। ये दो चीजें हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं उन बातों में से? मेरी अंडरस्टैंडिंग वही ना सूरह अंबिया की 24 नंबर आयत है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिक अफ़इन मित्ता अहदुन, नहीं हमने इंसान के लिए हमेशा की जिंदगी रखी है। पहली बात है हमेशा का जीना किसी को नहीं दिया गया, हमेशा की जिंदगी हमने किसी के लिए नहीं रखी, आपसे पहले भी। फिर क्या अगर आप मर गए फहुमुल खालिदून तो क्या ये हमेशा जिंदगी करेंगे? तो ये भी मर जाएंगे। यो तो कुरान करीम की आयत को आपको सबक से लेना चाहिए। ये उनके बारे में है जो कहते थे कि नबी पाक फौत हो जाएंगे तो ये सारा निजाम दरबर हो जाएगा, जिस तरह वो कहा था ना उन्होंने हुदैबिया के मौके पर कि ये आपके साथी सारे भाग जाएंगे। ये उन मुशरिकीन को जवाब दिया जा रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि आपके मरने के बाद ये निजाम खत्म हो जाएगा, आपने फौत हो जाएगा तो इन्होंने जिंदा रहना है, क्या ये हमेशा जिंदा रहेंगे? हमने किसी को भी कभी हमेशा जिंदा रहने के लिए जिंदगी नहीं दी। हमेशा की जिंदगी तो इसे अपने मरीज के लिए भी नहीं है। हाँ जी यामर भाई, ये है वो बात, ये है असल बात, क्योंकि ये बात जो है मुबहम थी। अब ये जब वाज़ेह हो गया ना कि हमेशगी की जिंदगी किसी को नहीं दी, तो हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हमेशगी की जिंदगी भी किसी को नहीं दी। हमारा ऐसा कोई ये है सिंपल। चल पर चल नहीं कोई नहीं है, चल 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 ये मौलाना मोहम्मद साहब की तफसीर को लिया है किसी नहीं सुन लो ना, तुसी ते नहीं मननी, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मननी लेगी थे मान के जाओगे, कोई चारा नहीं। तो मौलाना मोहम्मद साहब की तफसीर तर्जुमा कर लेते हैं, वो आयत का ये लिखते हैं और पीछे पहले हमने किसी इंसान के लिए चीजें नहीं रखी, तो क्या अगर तुम मर गए तो ये रह जाएंगे? ठीक है ना, मतलब ट्रांसलेशन हो गई ना। इस बात पे इत्तेफाक है? ठीक है, हाँ ठीक होगी, इस पे कोई ट्रांसलेशन से कोई इतराज नहीं है कि आपने ट्रांसलेशन बदल दी है। अब इसका जो वो इसमें लफ्ज इस्तेमाल होता है मिन कबल खुद से और ईसा के जिंदा ना होने पर दलील। अब वो खुद को बयान कर रहे हैं तफसील खुलूद है, जिसके लिए उन्होंने वो रेफरेंस निकाला है, इसके लिए देखो यहाँ मुस्तक़ील यानी जिंदा देर तक जिंदा रहना, मानी लेकर इस्लाम अलैहिस्सलाम के जिंदा ना होने पर दलील ली गई है। ईसा अलैहिस्सलाम इस इस्तदलाल से क्यों कर बाहर रह सकते हैं? ये मौलाना कहते हैं कि जब हिजर अलैहिस्सलाम के जिंदा ना होने पर दलील ली है तो फिर हज़रत ईसा इस इस्तदलाल से क्यों कर बाहर रह सकते हैं? किसने खिजर अलैहिस्सलाम की ये दलील किसने
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ यहाँ उसका लिखा है यहाँ पर मकसद कभी यानी देर ज़्यादा रहने की, लेकिन इससे हजरत मेरा ना गला दर्द कर नाम के जिंदा ना होने पर दलील ली गई है। ओ भाई इस्लाम का या ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र ही नहीं। ये आयत अपने जैकुसबात में नहीं उन्होंने लेकिन उन्होंने इसमें एक रेफरेंस भी दिया हुआ है, उसका लिखा हुआ है हवाला कि इसके लिए इसको देखो आपको मुझे वो निकालना पड़ेगा, उसमें पता नहीं लिखा हुआ है 39 वो मुझे निकालना पड़ेगा, 39 को देखना पड़ेगा कि वो क्या है, मतलब जैसे आपके पास वो मुझे अब देखनी पड़ेगी, तो वहाँ से मैं निकालता हूँ उसको। कहा है, लेकिन मसला मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मौलवी मोहम्मद अली साहब फातिमा जी के कायल है ना, उन्होंने यहाँ से अपना एक मानी अखज़ किया, अपना मतलब पूरा किया। कुरान करीम की बहुत सारी आयत से लोग अपना मतलब पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं, कर लें, हम तो नहीं मानते। कह रहा हूँ जिस तरह मौलाना साहब करेंगे, मौलाना साहब ये नहीं कहेंगे ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि इससे ये हो सकता है, लिहाजा इससे यही मतलब लिया जाए जो मैं समझ रहा हूँ, वो हवालों से बात करेंगे, बगैर हवाले के नहीं। इसमें हवाला कुरान में तो मौजूद नहीं है ना, ना खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम है ना ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, हवाला क्या देना है? किसी मुफस्सिर का जिक्र किया होगा तो उसकी बात तो हुज्जत है किसी बंदे की। सलाम अलैकुम। तो सवाल ये है साहब, ये मोहम्मद अली लोहरी साहब से इख्तिलाफ हो सकता है? वालेकुम सलाम। उनसे नहीं हो सकता, मिर्जा साहब से हो सकता है। नहीं मैंने नहीं कहा, क्यों नहीं? मौलाना मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा साहब से हो सकता है। आपसे पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद अली लोहरी साहब मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह के नबियों के अलावा किसी भी बंदे से इख्तिलाफ किया जा सकता है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, क्या इसमें क्या बात है? अगर कोई शख्स चाहे वो मौलाना पता लगे कि जी नबी करीम ने एक बात नहीं की, वो मंसूब कर रहे हैं, या कुरान में वो बात है ही और वो मंसूब कर रहे हैं कि कुरान में है, हमने कुरान को खंगाल मारा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम हो तो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम हो तो नबी पाक ने कहाँ फरमाया है? नबी पाक ने कहाँ फरमाया है? यार इस बंदे को तो यार चुप करा दिया, अब आगे नबी पाक ने शुएब राजा साहब कहाँ फरमाया है? नबी पाक ने कहाँ फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम बहुत नहीं हुए? ये कहाँ फरमाया उन्होंने? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना। हाँ कुरान राजा साहब, अभी जो को मैंने दिया है राजा साहब 1 to 1 गल करो, अच्छे तरीके नाल गल करो, बड़ी प्यारी गल हो रही सी, प्लीज 1 to 1 जिवें शेख साहब अगे कर रहे सो उस तरह ही करो। मैं फिर कर दूंगा, एक मिनट। मैं अमन नजीर साहब के नाल वन बाय वन नहीं कर रहा था, उन्हें राजा साहब आ गए, राजा साहब ने पूछ लिया कि जी वो कहते ने दसो किथे क्या है कि बहुत हो गए ने, मैं कह जी तुसी दसो वो कहते मेरे सवाल का जवाब नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दो उन्होंने अपना मोड तो चेक कर लेना, अपना मोड चेक करना फिर मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। गल है कि ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸੋਇਬ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮਨਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। मैं ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲਾਜਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਦਲ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਫਹੀਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨੇ ਨਾ ਹਦੀਸ ਚ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, नहीं आएगा, इस तरह नहीं है गल। मैं आप जो उसके हाथ पेश करना चाह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, ये देखो लिखा हुआ नहीं आएगा, ये देखो लिखा हुआ आएगा। हम केड़ी गल सही है केड़ी गलत? लो जी लोकी कहंगे सुन लो फिर शेख साहब। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 3 ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? कुरान पाक में वफात मसीह का ऐलान किया है, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। कुरान पाक में नज़ूल मसीह का नहीं, बिल्कुल नहीं। नबी पाक ने नज़ूल मसीह का ऐलान किया है। हदीसां कोट करते हो मगर मैं नहीं समझदा कि ये हदीसां उन्हां दी दुरुस्त ने। मैं कहां कि ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰੀ। नहीं नहीं कुआड़ी कोई नहीं है, कुआड़ी कोई नहीं है। ਪੈਰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜੇ ਪੈਰ ਸੱਜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੈ, ਤੇ ਮਊਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਦੀ ਸੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਵਾਅਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੋਊ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਆਏਗਾ। ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਯਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਚ ਮਦਾਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਫਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਫਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਵਫਾਤਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਵੱਡ ਇਹ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਮੁਕਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਮੁਕਾਓ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵਾਕੀ ਬਰੇਲੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫਲਾਣਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵਾਟਐਵਰ, और दूसरे अहले तशय्युअ हज़रात हैं
सबका माँ सिवाय लौरियों के, माँ सिवाय लौरियों के, सबका ये अकीदा है। कोई कहता है आ गए इस सूरत में, कोई कहता है आएंगे उस सूरत में नबी करीम के बाद, कोई कहता है जी जिली रंग में मिर्जा साहब नबी हैं, बरूदी रंग में है, सितारा के रंग में है, गैर हकीकी हैं। कोई कहता है नहीं जी आएंगे वो उम्मती होंगे, वो एक आदल भाईजान बात खत्म, चैप्टर खत्म, लाहौरी कहते हैं ना मिर्जा साहब नबी के किसी भी सूरत में, ना कोई नबी आएगा नबी करीम के बाद, हमारे नबी के बाद सील खत लग गई है, बंद हो गया, ना कोई पुराना रोला है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे नबी के बाद कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मतलब मिर्जा साहब के बाद कोई नबी किसी भी रंग में ठीक हो गया, और ना ही कोई पुराना, ठीक है, नबी के निशान ही नहीं है हमारे। शेख साहब मेरी गल सुनो ना, मैं अर्ज की है कि जे तुसी इस तरह करते हो ना भाई, एक गल तू जिदे तू बंदा फस जाए ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜੀ ਪੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੈਰ ਤੇ ਬਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਝੂਠੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਸਮ रोज बाबा से बुलंद जिस आप रोज आके कहते हैं बाबा से बुलंद, और जिदे साडा नबी जेड़ा वो अल्लाह पाक दी जात दी कसम खा के गवाही, वो कसम खा के गवाही दे रहा है, और उठो ओ कसम खा के ऐड करके तुसी लोकां नूं पक्का कर दे भाई नबी करीम दी शाया ने शाया नहीं कि उस गल ते कसम खान जेड़ी कुरान दी ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਬੀ ਰੂਹ ਕੰਪਨੀ चाहिए, रूह कंपनी चाहिए कि हम कह रहे हैं शेख साहब कुहाड़ी ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ यार खलो भी जाओ ना। जे नबी पाक कसम खा ही नहीं सकते जिदा जिक्र कुरान च नहीं, ते फिर मिर्जा साहब दावा झूठा कीता ना जेड़ा उन्होंने आख्या मैं मौऊद हां, मैं ओ वां जिदा हदीसां च वादा है, मैं ओ मौऊद हां जिस मसीह दा वादा है। मसीह दा वादा किथे वे मुकाना ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਣਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਹਦੀਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕੋ। मिर्जा साहब ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। शेख साहब फैसला मेरे शहजादे फैसला तो तां ही हो सकता है ना कि जेड़ा मिर्जा साहब दावा कीता वो झूठा दावा है, फिर मौऊद होने दा दावा झूठा है ना। फिर ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ एक मिनट ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ एक मिनट भाई दावा झूठा नहीं ते दावा ते मौऊद होंदा है ते वादा किथे वे? मौऊद दा वादा किथे वे दस दियो। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਉੱਲਾ ਨਬੀਉੱਲਾ 3 ਦਫਾ ਨਬੀਉੱਲਾ ਤੇ 4 ਦਫਾ ਨਬੀਉੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੰਗੀ ਕਿਉਂ ਠੋਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਸੀਲ ਹੈ, ਨਜਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮਨਾਰਤੁਲ ਮਸੀਹ ਹੈ ਵੇ ਬਿਸ਼ਕ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਲੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਫਰਕ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 39 ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਾਂ। ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਆਹੀ ਹੈ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ जी और उन्हें खुशखबरी दे जो ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं कि उनके लिए बाग है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब कभी उनको उनमें से कोई फल रिज़्क दिया जाएगा कहेंगे ये वही है जो हमें पहले दिया गया और इन्हें मिलता जुलता आगे उन्होंने ब्रैकेट लिखा है ब्रैकेट और इन्हें मिलता जुलता दिया जाएगा और इनके लिए उनमें 5 साथी होंगे जो इन्हीं में रहेंगे उन्होंने जरा कह रहा है कि किथे जाकर देखो हुण कौन किदे विच रहेगा और तीसरा उसके चों बाहर किवें निकलणगे ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲੀਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਫਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੈਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਹੀ में रहेंगे कौन रहेंगे और किसमें रहेंगे ये बता सकते जनतियों की बात है कि वो जन्नत में रहेंगे, उनके नीचे बागात नहरें बहती होंगी, वो जिक्र है उनका। जो भी है मौलाना साहब से मैं तो अपनी वजाहत मैं नहीं आमर भाई है 1.5 सफ़ा पर पढ़वाई है पढ़ो सारा कोई मसला नहीं वो मैं आमर साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਫਸੀਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਬ ਜਦਾ ਮੁਫੱਸਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਜੰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜੰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛੇ से ਜਦੋਂ मैं आमर नज़ीर साहब अगर आपको मैं कहूँ आप और आपके साथी जन्नत में रहेंगे मतलब किस बयान करूंगा वो